Hello everyone, welcome to the Kumar Academy. I hope you all are fit and fine at your home in this tough time and are doing well. So in today's video we are going to discuss about class 10th science NCERT chapter number 10, that is light, and there are two phenomena associated with it, that is reflection and refraction. So in today's video we are going to deal only with the reflection, and after that in the successive videos we will be dealing with the another terminology, that is refraction. Okay, so I have uploaded part 1 of the same chapter. If you have not watched that video, please go to our channel. What part 1? Because in that part 1 we have discussed about the basic concept, that what is light and why, how the light helps us to see the things, and after that we have discussed luminous object, non-luminous object and reflection of light. And in today's video we are going to deal with some interesting topic, that is, this is very interesting topic, and this is topic name is reflection of light by plane mirror. So I would like to tell you, just you must be having good idea about the reflection and the terms related to the reflection. So in the previous video we have discussed about reflection. So let's recall that. What is reflection? I have told you reflection is the process of sending back of the light rays which are incident on the object. किसी भी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होने वाले लाइट रेज को वापस उसी मीडियम में सेंड करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं. एंड यू मस्ट बी नोइंग द सरफेसेस और द ऑब्जेक्ट विच हैव स्मूथ सरफेस एंड हैविंग शाइनी अपीयरेंस आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट. कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो शाइनी होते हैं या जो पॉलिश्ड होते हैं, स्मूथ होते हैं, स्मूथ सरफेस वाले होते हैं, वो लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं. एंड दोज हु आर डल दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द लाइट. ओके, जो डल होते हैं, जिनमें शाइनी अपीयरेंस नहीं होता है, वो लाइट को बहुत कम रिफ्लेक्ट करते हैं. एंड डू नो विच इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट? सिल्वर मेटल इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट. This question can be in the examination or in any of the teacher can ask in the classroom. Please tell me which is the best reflector of the light. Then you can give the answer that silver is the best reflector of the light. That please, I think you have get the idea that what are the objects? The objects which are shiny and having the polished surfaces, they are the good reflectors of light. And on the other hand, the objects who are dull and they are not able to reflect the light properly. They are poor reflectors of light. जो शाइनी अपीयरेंस वाले होते हैं वो बेस्ट रिफ्लेक्टर्स होते हैं, गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं, और जो पुअर आपका डल अपीयरेंस वाले होते हैं बहुत कम लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. नाउ देयर इज अ न्यू टर्म्स कम, मिरर. Mirror is what? Now we are talking about only the plane mirrors. However, there are many kinds of mirrors are included in your syllabus, like spherical mirrors are also included in your syllabus. But right now we need to just limit it with the only, we need to limit a study to the plane mirror only. What is mirror? Mirror is a smooth surface that has polished on one side and having smooth surface on the other side. मिरर क्या होता है? एक सिंपल एक सरफेस होता है जिसमें एक साइड पॉलिश होती है और एक साइड एक शाइनी अपीयरेंस वाला सरफेस होता है. ओके, मिरर आपने सबने देखा होगा. प्लेन मिरर, जो फेस मिरर होता है, दैट इज अ प्लेन मिरर. कैसा होता है वो? प्लेन मिरर. उसके बैक साइड में पॉलिश होती है और फ्रंट में क्या होता है? शाइनी सरफेस होता है. ओके, व्हाट इज मिरर? Mirror is a surface that have shiny appearance on one side and on the back side it has some polished object. It has a polished surface. एक साइड कैसा होता है? शाइनी अपीयरेंस होता है. एक साइड कैसा होता है? पॉलिश्ड वाला होता है. ओके, तो मिरर क्या करता है? ऑलमोस्ट 100% लाइट तो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बट 80, 90, 75% कर सकता है. ओके, सो राइट नाउ वी नीड टू डील अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द प्लेन मिरर. मिरर इज जस्ट व्हाट इट इज. अगर कोई आपसे सिंपली पूछ रहा है कि मिरर क्या होता है, तो बताओ मिरर इज द रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट. व्हाट इज? मिरर इज द reflector of the light, or you can say mirror reflects the light. Clear? So we have taken why I have drawn the mirror this kind of, because in the plane, whenever you are drawing the plane mirror in the plane of paper, आप अगर पेपर पे ड्रॉ कर रहे होंगे तो फिर ऐसे ड्रॉ करते हैं. एक आपको ये लाइन, ये प्लेन मिरर है ये वाला, इसको आप ऐसे नेम भी कर सकते हो M1 M2 या M1 ही कर सकते हो. दिस इज योर मिरर M. Okay, so and these red lines, those are those are slanting lines, and these slanting lines is representing the polished surface. These slanting red lines are representing the polished one. वो क्या represent कर रही हैं? Polish को represent कर रही हैं. Now
one surface is smooth above one and the below surface is having a polish on the back surface. Okay, so now what happens whenever we are incidenting, whenever we are striking, or whenever we are falling a light ray on a plane mirror? Let's recall in this phenomena in this class. क्या होता है, अभी यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, whenever a light ray is incident on a plane mirror, then plane mirror sends the light back into the same medium, and this process of sending back of light into the same medium is called as reflection of light. हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ये एक इंसिडेंट रे है, कोई भी एक टॉर्च हो सकता है आपका, आपने यहाँ से इस पर क्या करा है, इंसिडेंट किया है रे, तो जिस रे को आप क्या कर रहे हो, रे क्या होता है, इट्स अ सिंपल लाइन बीम ऑफ, ओके, सो रे इट्स अ सिंपल लाइट, अ पार्ट ऑफ लाइट. तो यहाँ से हमने एक लाइट रे को इंसिडेंट किया है, टॉर्च वगैरह ले सकते हैं आप, दैट इज कॉल्ड एज रे. हालांकि वो बीम होता है, एग्जैक्टली रे तो नहीं बोलेंगे उसको. द कलेक्शन ऑफ रेज आर कॉल्ड एज बीम. बीम नहीं बोलना है, सिंगल रे बोलना है. ओके, सो व्हेनेवर वी आर इंसिडेंटिंग अ लाइट रे, दिस इज, as you all know, the light is always moving on a straight line path. I think you have studied this concept in class 7 और class 8. आपने class 7 से 8 में ही पढ़ा होगा कि लाइट कैसे मूव करती है, always it moves on a straight line path. तो यहाँ पे हमने एक straight line path लिया है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं. What we are doing, we are simply incidenting the light on this surface, and where the light is incident at the point, that point is called as point of incidence. What the point is so called, that point is called as incidence, point of incidence. Okay, and do you know why we are having the incident ray, reflected ray, normal, and this point of incidence? These are the terms related to the reflection. If you are going to study about the reflection, then you must be having clear idea about these terms. If you don't have the idea, then this can be a problem for you. सो अभी हमने कुछ अभी टर्म्स लिखे हैं, अभी इनको एक्सप्लेन भी करेंगे वन बाय वन. अभी नॉर्मल आपको बताऊंगा क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बताऊंगा, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे. राइट नाउ इट्स जस्ट अ सिमरी आइडिया, इट्स अ ओनली ब्रीफ आइडिया. ओके, सो नॉर्मल इज व्हाट, इट्स अ लाइन विच इज मेकिंग द 90 डिग्री फ्रॉम द सर्फेस. जो भी आपका पॉइंट है उससे 90 डिग्री एंगल को फॉर्म करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर रखी है हमने, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल. नॉर्मल इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये 90 डिग्री लाइन ड्रॉ कर रखी है. दिस इज इमेजिनरी लाइन, इट डजंट एग्जिस्ट. ये इमेजिनरी लाइन होती है, हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए ड्रॉ कर रखा है, एंगल्स को मेजर करने के लिए. ओके, एंड दिस इज द एंगल, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो द एंगल एट विच इंसिडेंस द रे इज इंसिडेंट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रे को इंसिडेंट कर रहे हैं, यहाँ पे एक रे को इंसिडेंट कर रहे हैं. मिरर क्या कर रहा है, मिरर इस रे को क्या कर रहा है, वापस इसी मीडियम में सेंड कर दे रहा है. हो सकता है इधर मीडियम डिफरेंट है, इधर मीडियम डिफरेंट है, जरूरी नहीं है मीडियम डिफरेंट, हो सकता है सेम मीडियम हो, ऐसा कुछ नहीं. तो जहाँ से आ रही है, जिस साइड से आ रही है, उसी साइड में इसको क्या कर रहा है, वापस भेज दे रहा है. और ये जो प्रोसेस होती है लाइट को उसी मीडियम में वापस भेजने की, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. राइट, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, whenever we are incidenting a ray of light on a plane mirror, ये हमने इंसिडेंट किया. ओके, then what do the plane mirror do? Plane mirror simply sends this light ray in the same medium. So it is sending this light in the same medium at the different direction different होगी. Okay, sending this light in the same direction, sending this light in the same medium. This process of sending the light back of by the mirror is called as reflection of light. क्लियर हो गया. अगर किसी भी किसी मिरर पे हम क्या कर रहे हैं, लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं, और हमारा जो मिरर है वो क्या कर रहा है, उसको उसी मीडियम में क्या कर रहा है, सेंड कर देता है वापस, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं. क्लियर हो गया. ये सारे कुछ टर्म्स हैं. इंसिडेंट रे आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल आपको पता होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे आपको पता होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपको पता होना चाहिए. दीज आर सम बेसिक टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अभी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग हमारी यही है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि इंसिडेंट रे क्या होता है, नॉर्मल रे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, वो सारा कुछ देखने वाले हैं हम. ओके, अभी क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है प्लेन मिरर से. ठीक है, प्लेन मिरर में हम क्या कर रहे हैं, एक रे है जिसको इंसिडेंट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे.
ठीक है। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो मिरर क्या करता है, उस रे को, इंसिडेंट रे को उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, सेंड कर देगा। तो जो रे है जो मिरर ने वापस सेंड करी है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस एंगल पे हम इंसिडेंट कर रहे होंगे उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जिस एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो रही होगी उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर? So this is all about your reflection of light by plane mirror. If you have any doubts then please let me know. एक बार इन पॉइंट्स को फिर से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इनकी डेफिनेशन आपको लिखवा देंगे, ठीक है। ये जो रे है जो इंसिडेंट करते हैं हम, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे। सिंपल डेफिनेशन है, द रे विच इज इंसिडेंट ऑन द मिरर इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये एंगल इसके साथ एसोसिएटेड है, कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप क्या बोलोगे, द एंगल बाई विच, द एंगल विच इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज इंसिडेंस एंगल। तो जो हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बना रही है या सबटेंड कर रही है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे फॉल हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और फिर मिरर क्या कर रहा है, इस रे को, इंसिडेंट रे को वापस उसी मीडियम में क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो रे होगी रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्ट होने के बाद उस रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, नहीं पता है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, आपको डेफिनेशंस लिखवा देते हैं एक बारी। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो पॉज करके जैसे भी आपको सुटेबल लगता है। ओके ओके। So students, I think we have taken the screenshot of the previous concept, that was reflection of light by plane mirror. Now we need to discuss some important terms that are related to the reflection. अगर आप इन terms की meaning नहीं पता होगी आपको, then nothing will be very clear to you. You will not be able to understand what is reflection, what are the terms that are related to reflection. You must understand, and you need to write the definition as well, because however this question doesn't come in the examination, but if you are just having a classroom teaching in the school, then teacher can ask you the question. You are not studying only for the examination, that because in the examination only 20-30% syllabus comes from a chapter. Only one question can come, two question can come, but if you are studying a concept, then you must be having good knowledge about the concept. So now we need to discuss about the terms related to the reflection of light. So the first term is incident ray. What is incident ray? Incident, I have told you, as the name suggests, the ray which is fallen on the ray which is incident on the reflecting surface is called as incident ray. Or you can simply define like that, the ray which is fallen on the reflecting surface is called as incident ray. Okay, why we are not using the mirror? Mirror is also an example of reflecting surface. Reflecting surface can be of any types, it can be mirror, it can be any other surface, water. So we are just using the general word reflecting surface. So the ray which is incident on the reflecting surface is called as incident ray. क्लियर? इंसिडेंट रे क्या होता है, जो रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं उस रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। या आप सिंपली बोल सकते हो, द रे विच फॉल्स ऑन इंसिडेंट, द रे विच फॉल्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। जो रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिफोर दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने, उसको नॉर्मल बोलते हैं। द एंगल विच इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। सॉरी, आई हैव रिटन सम रॉन्ग वर्ड ओवर हियर, इंसिडेंस, DENCE, okay, the angle of incidence. So the angle which incident ray makes with the normal is called as angle of incidence and it is represented by angle I. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंसिडेंट रे क्या करती है, नॉर्मल से जितना भी एंगल सबटेंड करेगी उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अभी एक बार डायग्राम बना के और क्लियर कर दूंगा तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो नॉर्मल से जितना भी एंगल फॉर्म करेगी इंसिडेंट रे उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिगर में एंगल I। ओके, नेक्स्ट थर्ड टॉपिक इज, थर्ड कंसेप्ट इज नॉर्मल।
व्हाट इज नॉर्मल? इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यू कैन से इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ पे लाइट रे हमारी इंसिडेंट होती है वहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा है, द इमेजिनरी लाइन विच मेक्स 90 डिग्री एंगल फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम क्या करते हैं? इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। एंड व्हाट इज द जॉब ऑफ दैट नॉर्मल? ओनली टू मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल्स को मेजर करने के लिए हम ऐसा ड्रॉ करते हैं, बाकी उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। एक बार देख लेते हैं फिर से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इंसिडेंट रे क्लियर है, क्या होता है? जिसको इंसिडेंट करते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जितने एंगल पे हम इंसिडेंस करते हैं लाइट इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, जितना एंगल फॉर्म करती है नॉर्मल से, उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे मैंने पूरा एग्जैक्टली नहीं लिखा है, द इमेजिनरी लाइन विच मेक्स 90 डिग्री एंगल फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, इज कॉल्ड एज नॉर्मल। आप ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे, आप ऐसे भी बोल सकते हो, द नॉर्मल इज द लाइन विच मेक्स, नॉर्मल इज द लाइन ड्रॉन at the point of incidence or the perpendicular line drawn at the point of incidence is called as normal। ठीक है, जैसे ये आपका point of incidence है, let's suppose ये आपका point of incidence है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? नॉर्मल। तो जिस भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हुए, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने सही ने लिखवाया, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बुक्स में जो लिखा है वही हम पढ़ने वाले हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेक आउट ऑफ द बुक्स, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लेके जाऊंगा आपको सिलेबस, ठीक है। तो ये आपका सिंपल है, जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट हो रही होगी उसी पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। एंड नॉर्मल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे जिस पॉइंट पे अपने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ किया है वहाँ से 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। क्लियर है नॉर्मल? ओके, एक बार देख लेते हैं, कुछ डाउट होगा तो फिर कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर दीजिएगा। ओके, इफ यू हैविंग एनी डाउट्स देन यू कैन पोस्ट योर डाउट्स इन द comment section below and I will be responding your doubts as soon as possible whenever I was reading your comment. Okay, so please take the screenshot. Okay, okay students, I think you have taken the screenshot of the previous concept, that was incident ray, reflected ray and incident ray, angle of incidence, normal. And right now we need to discuss some concept like reflected ray. Reflected ray is what? The ray which is sent back by the mirror or by any of the reflecting surface is called as reflected ray. तो जो रे किसी भी रिफ्लेक्टेड सरफेस से वापस सेंड करता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। द रे विच इज सेंट बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बैक इनटू द मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है ये? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम रे इंसिडेंट कर रहे थे तो जो हमारा मिरर था वो क्या कर रहा था? उसी को वापस सेंड कर दे रहा था। ओके, उस रे को क्या बोलते थे हम? रिफ्लेक्टेड रे। ओके, नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज वेरी सिंपल। द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे with the normal is called as angle of incidence. Actually I was confused among the definition की कौन सी बताऊँ आपको, बहुत सारे definition होती है, तो जो मैंने लिखी है वही बताऊँगा आपको, ठीक है। So the angle made by the reflected ray with the normal is called as angle of incidence. जैसे आपका ये मार्कर है, just okay, जैसे ये आपका ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, सॉरी ये रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो आपका रिफ्लेक्टेड रे जितना भी एंगल कंस्ट्रक्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये इंसिडेंट रे है, लेट्स सपोज, तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, तो जितना एंगल कंस्ट्रक्ट करेगी ये सबटेंड करेगा, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल का काम क्या होता है? एंगल को मेजर करने के लिए हम इसको ड्रॉ करते हैं और कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है इसका, ठीक है। ये नॉर्मल है, अगर इंसिडेंट रे आ रही है तो इंसिडेंट रे जिस एंगल पे फॉल करेगी उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है सरफेस, तो अगर ये रिफ्लेक्ट करने के बाद ये हमारा इस तरह से ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? ओके, नॉर्मल की मैंने एक डेफिनेशन और लिख दी है,
और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इट इज डिनोटेड बाय एंगल आर. ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय एंगल आर. I have written one more definition of normal because if you read in the book then you will get confused. ये सर ने क्या ही बता दिए, तो ऐसा कुछ नहीं है. The perpendicular drawn at the point of incidence is called as normal. Point of incidence पे जो perpendicular draw करते हैं उसको क्या बोलते हैं, normal. For example, this is a reflecting surface, my hand, and we are having this line. Okay, we are drawing this line, red marker, just like that. We are having this. Okay, then this point of this perpendicular line is called as normal. Okay, ये normal है. यहाँ से अगर आप सिंपल normal हो गया, यहाँ से इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. लिख देते हैं, क्या ही दिक्कत होगी. Okay, so please pause the video to make a note of it. Either you can take the screenshot, whatever the way suits you, you can use that one. जो भी आपको अच्छी लगती है वो आप, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं आप, राइट. ओके ओके, so this is your last topic, point of incidence. What is the point of incidence? The point at which incident ray strikes to the reflecting surface, strikes at the reflecting surface is called as point of incidence. Means कोई भी रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करते हैं, जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लेट्स सपोज माय हैंड, और यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये एक मिरर है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारी इंसिडेंट रे आ रही है, ये यहाँ पे स्ट्राइक किया, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. क्लियर है. जिस पॉइंट पे फॉल करेगी, जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करेगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. आई थिंक द आइडिया इज क्लियर. So please pause the video to make a note of it. Point of incidence is also clear. That is not very big topic. बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में बताया. क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करती है या स्ट्राइक करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. सो प्लीज pause the video to make a note of it. After that we are going to recall all those concepts. Whatever we have discussed till now, we are going to recall all those concepts with the help of diagram. Okay, just wait. Okay students, so I think you have taken the screenshot of the previous concept. In the previous concept we have discussed that some terms, important terms related to the reflection of light. Now let's recall all those terms one by one. First term that we have discussed, I have just drawn this diagram again because we will going to discuss the laws of reflection. In this concept we will need of this diagram. There will be a need of this diagram. अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम laws of reflection को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जो भी कॉन्सेप्ट्स, जो भी टर्म्स से रिफ्लेक्टेड से रिलेटेड, उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट इज इंसिडेंट रे. व्हाट इज इंसिडेंट रे? द रे विच इज इंसिडेंट और विच इज फॉल्ड ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और विच इज फॉलन एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो कोई भी ऐसी रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होती है, ये इसको फॉल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे. ओके, एंड देन वी नीड टू डिस्कस अबाउट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. दैट इज मिस्ड नाउ. दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. Point of incidence. Okay, so what is point of incidence? Point of incidence is a point at which incident ray strikes to the reflecting surface. ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये स्ट्राइक कर रही है इस पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे स्ट्राइक कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके, एंड नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. What is angle of incidence? The angle of incidence is the angle made by the incident ray with the normal. इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल सबटेंड करेगी या फॉर्म करेगी उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आई. ओके, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टेड रे. व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे? द रे विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे. तो ये मिरर क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या कर रहा है, इस रे को वापस सेंड कर रहा है, तो इस रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे. ओके, and it is making the angle with the normal. That angle is so called as angle of reflection. जितना भी एंगल ये नॉर्मल से फॉर्म करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, नेक्स्ट इज, and I think idea is clear.
all normal is what? Normal is a line, perpendicular line, okay, line making 90 degree angle at the point of incidence. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने क्या किया है, 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करी है, उसको ये नॉर्मल बोलते हैं, ओके। सो इंसिडेंट रे व्हाट इज इट क्लियर? इंसिडेंट रे क्या होती है? जो स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, जो इंसिडेंट होती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो रिफ्लेक्ट होती है, जो वापस सेंड करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। जो लाइन 90 डिग्री फॉर्म करती है कहाँ पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है, इमेजिनरी लाइन, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। जितना एंगल पे ये आती है इंसिडेंस रे नॉर्मल से, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। जितने एंगल पे ये जाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? दिस ऑल द टर्म्स आर वेरी क्लियर टू यू आई थिंक। नाउ लेट्स रिकॉल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट हैज, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने होते हैं मेनली? देयर आर टू लॉज। सो फर्स्ट वन इज इंसिडेंट रे, ओके, फर्स्ट वन इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल शुड लाई इन द सेम प्लेन। तीनों जो होंगे एक प्लेन में लाई करेंगे। कौन कौन से? इंसिडेंट रे, ये वाला इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों कहाँ लाई कर रहे हैं? एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। जैसे ये देखो आपका क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ही प्लेन है। प्लेन का मतलब अगर बोर्ड आप देख रहे हो, बोर्ड क्या है? प्लेन है। अगर इससे बाहर चला जाए मतलब ऐसे कुछ हो जाए, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, दोनों डिफरेंट प्लेन में हो गए। रेड वाला मार्कर जो है वो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल बाहर चला गया, ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल शुड लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अभी देखो ऐसे, तो एक ही प्लेन में तो लाई कर रहे हैं, दूसरे प्लेन में कैसे जाएंगे? ऐसे। अगर ये बाहर चला जाए दैट मीन्स ये दूसरा प्लेन हो गया। अभी बोर्ड कैसा है? एक ही प्लेन है ये, ठीक है। प्लेन का मतलब होता है कि यहाँ से बाहर निकल जाए ये, तो उसको प्लेन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। प्लेन ऑफ बोर्ड में तो है ये, बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, तो ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं और एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, बाहर नहीं जाने चाहिए, ओके। सेकेंड लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Angle of incidence is always equal to angle of reflection. This is the main law of reflection. If somebody is asking, please tell me the law of reflection, then you will tell only this one. This one is very very important, very very important, I tell you. Okay, I tell you, very important. So you can just recall this law very clearly because this is one of the important law of reflection. कोई भी अगर आपसे पूछ रहा है कि law of reflection क्या होता है, तो आप ये वाला नहीं बताओगे, मोस्टली ये बताओगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स एंगल आई शुड बी इक्वल्स टू एंगल आर, हमेशा होता है ऐसा। मीन्स अगर आपने 40 डिग्री पे इंसिडेंट करी है तो ये 40 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपने 30 डिग्री पे करा है तो ये 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट, ये दोनों एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री पे है तो ये भी 30 डिग्री पे होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है। अगर 90, अगर आपका एक केस ऐसा भी होता है, लेट्स सपोज अभी डिस्कस करते हैं, ये आपका है, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। लेट्स सपोज ये 30 डिग्री है, एग्जैक्टली तो नहीं है, जैसे ये है, ये आपका अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा भी होता है, ठीक है। कितना होगा? 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी क्या होता है, एक स्पेशल केस होता है, जैसे ये है, अब आप क्या कर रहे हो, सरफेस से 0 डिग्री पे फॉल कर रहे हो। जैसे ये इंसिडेंट रे है, इसी पे आपने फॉल कर दिया, तो नॉर्मल वही डायरेक्शन में होगा और इंसिडेंट रे भी वही डायरेक्शन में होगी, तो एंगल कितना होगा दोनों के बीच का? 0। तो 0 एंगल पे ही इसको क्या करेगी, ये 90 एंगल पे ही इसको क्या करेगी, ये इस तरह से ट्रांसमिट कर देगा। अगर कोई भी लाइट 90 एंगल पे इंसिडेंट हो रही है तो वो क्या करेगा, तो वो उसको उसी पाथ पे वापस, इट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ, वो अपने पाथ को ही वापस चली जाएगी। ऐसा भी एक केस होता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये सारा कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आई विल गिव यू लिंक ऑफ व्हाट्सएप डिस्कशन फोरम इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, देन प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप and you can, your welcome is there, you simply you can ask your queries there, you can discuss whatever you want to discuss there about your syllabus only. So please take the screenshot, either you can pause the video to make a note of it.
So students, this is all about your today's video. If you like this video, then please hit the like button. If you are new to our channel, then please subscribe to our channel and also press the bell icon and do all, so that whenever we are uploading a new video, you will get the notification for that. And I would like to request you to share this video as much as possible wherever you are connected with the social media platforms, like you are connected on the WhatsApp, you are connected on the Facebook. So please share on these platforms, because we are trying to provide you free of cost content. So we need your love and support. Without your love and support, we cannot do anything. So please share this video as much as possible, and thank you so much all of you for watching this complete video. Thank you so much all of you.